Hello students, today I'm telling you about national income conversion of formulas. So there are three types of conversion conversion from gross to net. Second is from national to domestic, and the third is market price to factor cost. Okay, these are the three conversion topics. First of all, we have to know about what is gross and what is net. What includes in national concept and what is in domestic concept. And the third one is what's in market price and what's in factor cost. One by one, I'm telling you about. First of all, gross. Gross means gross, it refers to inclusive of depreciation. Inclusive of depreciation. Whereas net, it refers to exclusive of depreciation. That means value of depreciation is not included in net concept. Exclusive of depreciation. Okay, so if we want to convert gross into net or net into gross, we have some formulas. Number one, if we want gross and we have the value of net, we have to add value of depreciation into net to get gross. That means gross is equal to net plus depreciation. Okay, if we want to get value in net form and we have gross value, then we know that gross includes the value of depreciation, whereas we want net value. That means we want answer in without depreciation. So by subtracting the value of depreciation from gross, we get net. Okay, that means what is the formula for depreciation? Depreciation refers to gross minus net. It is clear to all? It was the first conversion topic. As we know that when we're talking about GDP refers to gross domestic product. If we want to convert GDP into NDP, net domestic product, then with the value of GDP, we have to subtract the value of depreciation to get net domestic product. Okay? To get net domestic product or NDP, we have to subtract the value of depreciation from GDP to get NDP. Okay? Now, this was the first conversion topic. Second one is national and domestic. So first of all, we have to know what includes in national concept. National includes net factor income from abroad. Net factor income from abroad. It is included in national concept. Included. Whereas in domestic concept, as we know that it is sum total of goods and services produced within the domestic territory. That means net factor income from abroad is not included in domestic concept. We have to write
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक और टर्म का इस्तेमाल होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं और हमारे पास से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कम पैसे जा रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड is included in national income, whereas NFIA is not included. NFIA is not included in domestic concept. Okay? सिर्फ इसी चीज का डिफरेंस है नेशनल और डोमेस्टिक कंसेप्ट में। GDP refers to gross domestic product. Okay, gross domestic product, domestic term. That means GDP doesn't includes the value of NFIA, net factor income from abroad, इसमें शामिल नहीं है। जबकि जब हम लोग नेशनल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, या अगर हम बोले GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन केस ऑफ GNP NFIA इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे कई तरह के टर्म्स है। अभी GNP, GDP, NDP, NNP, इनको लेके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, इट इज सेकेंड नेशनल एंड डोमेस्टिक। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर NFIA? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, national income minus domestic income to get net factor income from abroad। वैसे जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है NFIA का, बहुत ध्यान से उसको देखिए, वही क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। NFIA, net factor income from abroad, refers to factor income from abroad minus फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जब हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बन जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ऐसा हम सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा हो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम हो। कहने का मतलब ये है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री के अंदर फैक्टर इनकम जो आ रही है, मान लेते हैं 100 करोड़ की है, ठीक, और हमारी कंट्री से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये फैक्टर इनकम बिलोंग करती है किसी दूसरी कंट्री से। हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो फैक्टर इनकम जा रही है वो मान लेते हैं 80 करोड़ है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम आ रही है 100 करोड़, हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रही है 80 करोड़, 100 करोड़। दैट मींस फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास आने वाला पैसा ज्यादा है, हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाने वाला पैसा कम है, तो ओवरऑल हमारी कंट्री बेनिफिट में है इस समय। 100 करोड़ माइनस 80 करोड़, 20 करोड़ का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव में वैल्यू हमारी कंट्री के लिए आ रही है तो वो है हमारे लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ठीक कंसेप्ट उल्टा हो जाए, हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 100 करोड़ जा रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर 100 करोड़ है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री में आने वाला जो पैसा है वो 80 करोड़ है, तो हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाने वाला पैसा ज्यादा है। तो इस केस में 100 करोड़ माइनस 80 करोड़, 20 करोड़ का जो आंसर निकलेगा, दिस आंसर रेफर्स टू नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, अगर फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग ऐड करने का काम करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर है तो कंफर्म है हमारे पास से पैसा गया है।
माइनस करना पड़ेगा, यानी कंसेप्ट ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, क्लियर। और अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला बनेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का। फ्रॉम अब्रॉड अगर हम प्लस करने का काम करते हैं तो टू अब्रॉड हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड कन्वर्जन बिलोंग्स टू मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, कोई भी सामान जब बनके तैयार होता है, प्रोड्यूसर ने सामान बना के तैयार कर दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, लेकिन मार्केट में आने पर गवर्नमेंट उस पर कुछ टैक्सेस लगा देती है। तो when we talking about market price, it is written as MP. ठीक, it includes the value of net indirect taxes. It includes the value of net indirect taxes. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे NIT। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस, कोई भी सामान जब मार्केट पे आती है, हमेशा आप लोगों ने देखा इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, सब पे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल है। जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट FC, फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, दैट मींस इसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा होगा। दिस एक्सक्लूड्स NIT, यानी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं है। ठीक, तो अगर हम लोग फॉर्मूले में देखने का काम करें, फॉर्मूले में अगर हम लोग देखने का काम करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, MP इज इक्वल टू FC। मार्केट प्राइस अगर चाहिए और हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में कोई चीज है, तो फैक्टर कॉस्ट में NIT को अगर हमने प्लस कर दिया, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, हमारे पास मार्केट प्राइस पे वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो, और मार्केट प्राइस है पहले से, तो कंफर्म है इसमें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर इसमें से शामिल हैं और हमने टैक्सेस की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, यानी इस सिचुएशन में हमें NIT माइनस करना है। इन दोनों फॉर्मूले से अब हमें ये पता चला, अगर हमें NIT निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। इट इज क्लियर? Now, the main formula for NIT, net indirect taxes, it refers to indirect taxes minus subsidies. इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम लोग सब्सिडीज माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, सामान महंगा हो जाता है, सामान महंगा हो जाने पे कभी कभी ये देखने को मिलता है कि सेल कम होती चली जा रही है। अगर सेल कम होती चली जाएगी तो कंफर्म है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी कम होती चली जाएंगी, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज के कम होने पे जीडीपी डिक्लाइन करेगा। इस सिचुएशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस इंपोज करने के बाद सब्सिडीज भी दे देती है, जैसा गैस सिलेंडर पर देने का काम किया था गवर्नमेंट ने। ठीक, पेट्रोल पर पहले सब्सिडीज इसी तरीके से रहती थी। मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में गवर्नमेंट सब्सिडीज देने का काम करती है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, सामान महंगा हो गया, सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दे दी जिससे सामान सस्ता हो गया। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने पे हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, जिसकी जरूरत हम लोग को नेशनल इनकम पे पड़ेगी। अच्छा, हमें लग रहा है कि अभी जो पिछला वाला डोमेस्टिक और नेशनल वाला कंसेप्ट था उसमें फॉर्मूला बनाया नहीं था, बना लेते हैं उस फॉर्मूले को भी। फिर कंप्लीट एक न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल इन द सेंस कन्वर्जन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हम लोग का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए।
national, national refers to domestic, नेशनल में NFIA शामिल होता है, डोमेस्टिक में NFIA शामिल नहीं है। तो अगर डोमेस्टिक हमारे पास वैल्यू है और हमें आंसर नेशनल में चाहिए, क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA कर दें इसमें। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हमने ऐड कर दिया डोमेस्टिक कंसेप्ट में तो हमारा कंसेप्ट नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें डोमेस्टिक में आंसर निकालना है और हमारे पास पहले से नेशनल कंसेप्ट है, हमें डोमेस्टिक चाहिए मींस विदाउट NFIA चाहिए, जबकि नेशनल में शामिल है वो। तो नेशनल में से NFIA अगर हम माइनस कर दें डोमेस्टिक बन जाएगा, माइनस NFIA। दैट मींस NFIA का फॉर्मूला क्या बन रहा है? नेशनल माइनस डोमेस्टिक। ओके, नेशनल माइनस डोमेस्टिक, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। और दूसरा NFIA का फॉर्मूला तो हमने वहां पर बताया ही तुम लोगों को, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, तो कन्वर्जन में यही तीन तरह की चीजें हम लोग को करनी है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, नेशनल को डोमेस्टिक में करना है और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है। अब एक न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। हर तरह के, जितने तरह के, देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो हम कोई एक चीज कॉमन ले लेंगे और बाकी की 7 चीजें कन्वर्ट कर करके निकालेंगे, जिससे फॉर्मूला बनाना हम लोग सीख जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे बोला जा रहा है नेशनल इनकम, then the abbreviation used for national income is NNPFC, net national product at factor cost। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम बोला जा रहा है, इट रेफर्स टू NDPFC, GDP नहीं है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब GDP नहीं है, आप लोग को ये ध्यान रखना है। NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ये 2 चीजें दिमाग में रखना। तो अब हम लोग एक चीज को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास गिवन है, इसी को मान लेते हैं नेशनल इनकम इज गिवन। ठीक, एंड वी हैव टू कैलकुलेट अदर 7 एग्रीगेट्स। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से एग्रीगेट हैं। नंबर 1 NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमको निकालना है NDPFC और हमारे पास गिवन देखो हमने पहले ही लिख रखा है NNPFC है, NNPFC। अब देखना है आपको क्या चेंज करना है, ध्यान से देखना एक एक करके। नेट नेट कॉमन है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। नेट को वैसे ग्रॉस में करते हैं, ग्रॉस को नेट में करते हैं। यहां पर दोनों ही नेट हैं, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज नेशनल, हमारे पास गिवन है और हमें चाहिए डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है। नेशनल इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ NFIA। ठीक, और हमें चाहिए डोमेस्टिक यानी विदाउट NFIA। तो क्या करें, माइनस NFIA करते हैं। NFIA माइनस करने पे ये नेट नेशनल से नेट डोमेस्टिक में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट कॉमन रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इज FCFC, ये भी कॉमन मिल गया। तो NNPFC को NDPFC में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ NFIA, क्योंकि इतना सा ही केवल डिफरेंस था, बाकी सारी चीजें देखो सेम है। डोमेस्टिक और नेशनल, यही 2 डिफरेंट चीजें हैं। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए NFIA केवल हम माइनस कर दें, बाकी पहले से ही कॉमन है। नेट नेट फैक्टर कॉस्ट। ओके, ये पहला फॉर्मूला था, फर्स्ट एग्रीगेट। सेकंड NDPMP,
इस बार हम लोग एनडीपी एमपी निकालेंगे। गिवन हमारे पास वही है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी एनडीपी एमपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, तो देखो नेट नेट कॉमन मिल गया, नेशनल हमारे पास है और हमें आंसर चाहिए डोमेस्टिक में। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआई करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और हमें आंसर चाहिए मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल नहीं होते हैं और हमें आंसर चाहिए विद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी हो गया कन्वर्ट पूरा, क्योंकि एक ये कन्वर्ट करना था, एक ये करना था, दो कन्वर्शन करने थे, दो हम लोगों ने कर दिए। थर्ड, इस बार हमारे पास है एनएनपीएमपी। इस बार हमें चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकालना है, गिवन सेम है एनएनपीएफसी। तो देखो नेट नेट कॉमन मिल गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। नेशनल नेशनल कॉमन मिल गया, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। हमारे पास आंसर है फैक्टर कॉस्ट में और हमें आंसर चाहिए मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए प्लस एनआईटी हो गया। 3 कंप्लीट। जो कन्वर्ट करना था हमने उस चीज को कन्वर्ट कर दिया। एनएनपीएफसी में एनआईटी ऐड करने पे एनएनपीएमपी हमारा बन गया, मार्केट प्राइस पे चीज आ गई। नाउ द फोर्थ वन। अब ग्रॉस के चारों कंसेप्ट होंगे। चलो सबसे पहले जीडीपीएफसी। इस बार निकालना है हम लोग को जीडीपीएफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन है हमारे पास एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी अब देखो नेट में है, ग्रॉस में आंसर चाहिए। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेशनल है, डोमेस्टिक चाहिए। नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआईए। ओके, फैक्टर कॉस्ट कॉमन मिल गया। ठीक, बन गया फॉर्मूला कंप्लीट। फिफ्थ, जीडीपीएमपी। इस बार जीडीपीएमपी निकालेंगे, गिवन वही है एनएनपीएफसी। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनआईटी। तो देखो तीनों तरह के जो कन्वर्जन थे तीनों का हमें इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि नेट में हमारे पास पहले से था और हमें आंसर ग्रॉस में चाहिए था। नेशनल में हमारे पास आंसर था, हमें डोमेस्टिक में आंसर कन्वर्ट करना था। फैक्टर कॉस्ट में चीज थी, मार्केट प्राइस में चाहिए था, इसलिए तीनों तरह के जो कन्वर्जन है उनका इस्तेमाल हुआ। 6th, जीएनपीएमपी। एनएनपीएफसी गिवन है। अब जीएनपीएमपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें कन्वर्ट करते हैं। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल कॉमन मिल गया। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, प्लस एनआईटी हो गया। लास्ट, जीएनपीएफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास है एनएनपीएफसी। देखो ध्यान से, नेट में है, ग्रॉस में आंसर चाहिए, प्लस करो डेप्रिसिएशन। नेशनल है और नेशनल ही चाहिए, कोई कन्वर्जन नहीं। फैक्टर कॉस्ट है और फैक्टर कॉस्ट ही चाहिए, कोई कन्वर्जन नहीं। फॉर्मूले कंप्लीट। ठीक,
तो ये है कन्वर्जन। इस तरीके से चीजों को कन्वर्ट करते हैं। और जितने भी टोटल 8 तरह के एग्रीगेट्स हैं, एनडीपीएफसी मींस डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, और ये बाकी के सारे। तो किस तरीके से किसको हम कन्वर्ट करें जिससे हमारा क्या आंसर बन के तैयार होगा, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर ये क्लियर हो गया तो ये समझ लीजिए 50% नेशनल इनकम क्लियर। क्योंकि फॉर्मूलों का कन्वर्जन, किस तरीके से दूसरे फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक, सब्सक्राइब कर लोगे तो जितने भी आगे के वीडियोस होंगे वो सब भी तुम लोग को मिलते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।